welcome back to the lecture of income tax, my dear students. Okay, yes, now, okay. Okay, yes. Now, my dear students, so section 139(1). Section 139(1) tells us all the people जिसको return of income file करना mandatory है, company, partnership firm और LLP, right? Then ROR having assets outside India, then individual, HUF, AOP, BOI, AJP. इनके केस में हमको क्या चेक करना है? We need to check whether the gross total income is obviously without deducting डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 ए. ओके, देन चेक करो उस पर ऐड बैक करो. व्हाट ऐड बैक करो? एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 54, जो भी आपने एग्जाम्पशन लिया है. ओके, इफ दैट अमाउंट इज मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, देन ROI हैज टू बी फाइल्ड. Okay, then total deposits in current account if more than rupees 1 crore, total foreign travel expenses if more than 2 lakh, total electricity bill if more than 1 lakh, any of these conditions is fulfilled, then you have to compulsorily file ROI. Also, university or college covered under section 35, मतलब जिनको हम donations देते हैं, okay, under scientific research, for conducting scientific research have to compulsorily file return of income. Okay, investment funds also have to file compulsory return of income. Then due dates. Okay, these due dates are linked to whether you are covered under tax audit or not. If you are covered under tax audit and a corporate assessee, the due date are 31st of October for filing return of income, and for conducting audit it is 31st of July. So accordingly we have jotted down a small list wherein what would be the due date of filing the return of income. Company who is covered under audit or not, it will always be 31st of October. Firm or LLP subject to audit 31st October, non-audit 31st July. Partners of firm or LLP which is subject to audit would be 31st of October, else 31st of July. Same with the other assessees. In case of transfer pricing, the due date would be 30th of November, my dear students. Yes. Now, CG has given exemption from filing of ROI, that is return of income. Okay, return of income is filed under income tax return, ITR. Okay, yes. Non-resident, if not a company, okay, other than company, non-resident होगा तो exemption may be given. Okay, और अगर foreign company है and this foreign company has investment in investment fund and this investment fund is situated in IFSC. Okay, IFSC area. In that case, if TDS is deducted on this income and this foreign company has no other income which is taxable in India, okay, and no notice of assessment has been received, in that case, exemption may be granted by central government. Okay, from filing return of income. 139(3) speaks about loss return, may or may not file ROI, not mandatory. PGPP and capital gain losses can be carried forward only if return of income is filed on or before the due date of return. ओके, बाकी सारे लॉसेस आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो. 139(4) speaks about belated return before end of relevant AY or completion of assessment, whichever is earlier. Revised return, original plus belated return can be revised before end of relevant AY or completion of assessment, whichever is earlier. In case if the return is defective and AO finds out that the defect, then AO will intimate the assessee to reply. Okay, assessee has to reply within 15 days. Extension ले सकता है assessee maximum 15 days का. Okay, उससे ज़्यादा extension नहीं मिलता. अगर assessee ने rectify किया, okay, अगर assessee ने rectify नहीं किया, in that case it will be considered as an invalid return. इसमें एक important point हमने ये देखा कि अगर 30 दिन हो चुके हैं पर अभी तक assessment नहीं हुआ और अगर आपने rectification कर लिया, okay, then there is a mercy provision. ओके, तो आप वहाँ पे रिटर्न ऑफ इनकम वैलिड कर सकते हो. दीज आर द मेजर थिंग्स दैट वी सॉ. देन फर्दर हमने देखा कि कहाँ पे पैन मेंशन करना जरूरी है, एंड जहाँ पे पैन लेने के लिए, ओके, जहाँ पे पैन होगा वहाँ पे आधार नंबर भी आपको मेंशन करना पड़ेगा, और पैन कार्ड लेने के लिए भी आधार नंबर, मतलब फर्स्ट आप आधार कार्ड निकालो, आपका आधार नंबर लो, फिर उसको कोड करके पैन निकालो, फिर पैन को कोड करके आधार नंबर को कोड करके रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करो. ओके, सो दिस इज द बेसिक क्रक्स ऑफ द स्टोरी. ओके, यस, मेजर. Then further, when we saw assessment procedures, my dear students, in the assessment procedures, we saw a few very important things. Yes, रिटर्न ऑफ इनकम प्लस सेल्फ असेसमेंट टैक्स. अगर आप पे करते हो, अगर आप रिटर्न फाइल करते हो, देन असेसमेंट देन अगर इनकम टैक्स अथॉरिटीज को लगा तो दे विल कंडक्ट द असेसमेंट. अगर उन्होंने असेसमेंट कंडक्ट करी, ओके, तो वो क्या करेंगे? दे विल लुक इनटू योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, दे विल लुक इनटू योर रिटर्न ऑफ इनकम. अगर उनमें देख के उनको ऐसा लगा कि योर बिजनेस इज वेरी कॉम्प्लेक्स, वॉल्यूमिनस, डाउट्स है उसमें, राइट, मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस है, इट इज स्पेशलाइज्ड इन नेचर, एंड इफ इन द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू,
स्पेशल ऑडिट करना मैंडेटरी है तो वो अनाउंस कर देंगे स्पेशल ऑडिट. अब इज दिस स्पेशल ऑडिट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ ऑडिट बाय क्लाइंट? नो. ये क्या होता है ना, हर क्लाइंट को, हर असेसी को अपना ऑडिट करवा के ही लेना है. ये स्पेशल ऑडिट है जो हमें इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने बोला है. सो इट इज ऑलवेज एन एडिशन टू द ऑडिट विच इज कंडक्टेड बाय द असेसी. ओके, पहले शो कॉज नोटिस के बिना कुछ नहीं होगा. अगर डिटेल्ड असेसमेंट करना पड़ा तो 143(3) के अंडर करेंगे. इसका नोटिस दिया जाता है 143(2) के अंडर. इसका टाइम लिमिट क्या है? विद इन 6 months फ्रॉम एंड ऑफ FY इन विच ROI इज फाइल्ड. ROI नहीं फाइल किया तो 143(3) में स्क्रूटनी असेसमेंट नहीं हो सकता. ओके, अगर आपने ROI फाइल नहीं किया है या बिलेटेड रिटर्न नहीं फाइल किया है, किसी नोटिस का रिप्लाई नहीं किया है, स्पेशल ऑडिट नहीं कंडक्ट किया है, स्क्रूटनी का रिप्लाई नहीं किया, इन दैट केस डिपार्टमेंट विल डू व्हाट? बेस्ट जजमेंट असेसमेंट. उनको जो ठीक लगेगा वो ऑर्डर पास कर देंगे. ओके, यस. अब शो कॉज नोटिस मैंडेटरी है, बट अगर नोटिस आपको 142(1) के अंडर दिया है, उसका रिप्लाई नहीं किया तो शो कॉज नोटिस का क्या रिप्लाई करोगे? करेक्ट. तो इट वुड बी डीम्ड कि वो इट वुड बी ट्रीटेड एज द शो कॉज नोटिस अंडर दिस पर्टिकुलर असेसमेंट. माय डियर स्टूडेंट्स, फर्दर सेक्शन 147, अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि आपने कुछ इनकम एस्केप की है, यू हैव हिडन सर्टेन इनकम्स, इन दैट केस इनकम एस्केपिंग असेसमेंट हो जाएगा सेक्शन 147 के अंडर. इसका नोटिस आता है सेक्शन 148 में. ओके, व्हाट इज द टाइम लिमिट? इफ इनकम इज लेस देन 1 lakh, 4 years फ्रॉम द एंड ऑफ AY. Okay, if income is more than or equal to 1 lakh, 4 years, maximum 6 years. If asset is outside India, 4 years, maximum 16 years. Okay, yes. So आगे नेक्स्ट हमने क्या देखा? असेसमेंट करने के लिए अगर एओ ने अपने हाथ में कोई केस ले लिया तो वो केस को उसको कितने टाइम पीरियड में वाइंड अप करना है? 12 months में उसको अपना काम कंप्लीट करना है. इज इट डिफिकल्ट? विद इन 10 minutes, 10 मिनट भी हमको रिविजन के लिए नहीं लगे एंड वी फिनिश दिस पर्टिकुलर चैप्टर्स माय डियर स्टूडेंट्स. ओके, यस. Further, now we are going ahead with one of the most important chapters, advanced tax. Not just in theoretical, not just for exams, but also in our practical lives. Okay, yes. Now my dear students, what is meant by advanced tax? What is meant by advanced tax? समझिए. Okay, बहुत logical, बहुत simple. Okay, yes. Say this is my previous year. This is my assessment year. Okay, now what happens in previous year, my dear students? Okay, say अपना previous year कौन सा है? 2021, right? So 1/4/20. This is 31st March 21 and this is 31st March 22. So this is our PY, this is our AY, right? PY में we earn income, right? And AY में we pay tax, right? अब तक तो ये by heart ही हो गया है, कोई नींद में भी पूछे तो हमको ये पता है, right? Okay, yes. Now understand, my dear students. Now understand. What does the government say? आप तो इनकम अर्न कर रहे हो इस साल में. ओके, गवर्नमेंट क्या बोलता है? आप इनकम अर्न कर रहे हो इस साल में, राइट? आप अपने पैसों का मजा ले रहे हो 2021 में और आप हमको टैक्स पे कर रहे हो असेसमेंट ईयर में. एंड यू आर पेइंग टैक्स माय डियर स्टूडेंट्स इन दी असेसमेंट ईयर. ठीक है, अब इसके पहले वाले सेशन में हमने क्या देखा? हाउ टू कंप्यूट सेल्फ असेसमेंट टैक्स, राइट? यस, यहाँ पे हमने क्या देखा कि 5 heads ऑफ इनकम है, उनका इनकम हमने ऐड किया तो अपना GTI आया. GTI में से हमने लेस डिडक्शंस किया तो नेट टोटल इनकम आया. फिर उस पर आपने टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करी, लेस रिबेट, फिर एड सरचार्ज, लेस MR, एड सेस, ऐसे अपनी आई टैक्स लायबिलिटी. इस टैक्स लायबिलिटी में से हमने लेस किया TDS, माय डियर स्टूडेंट्स. इस टैक्स लायबिलिटी में से हमने लेस किया TDS और लेस हमने एडवांस टैक्स किया. मतलब इसका मतलब क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? कि जो गवर्नमेंट है ना, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है ना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या बोल रही है? आपने इनकम कब अर्न किया? इन दिस ईयर. हमें भी चाहिए. ओके, सो हियर इन दिस AY, सी अंडरस्टैंड, लिसन टू मी. ये बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं. ओके, तो AY में जो हम टैक्स पे करते हैं उसको कहा जाता है सेल्फ असेसमेंट टैक्स. ओके,
एंड जो पीवाई में हमको पे करना पड़ता है, इट इज नोन एज एडवांस टैक्स, प्रीपेड टैक्स, पे एज यू अर्न। आपने पैसा कमाया, उस पर आप टैक्स करो, इसमें पे करना पड़ता है एडवांस टैक्स। इसका मतलब क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? बहुत लॉजिकल है, बहुत लॉजिकल है। ओके, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या बोलता है? यू आर अर्निंग इनकम इन पीवाई, यू आर पेइंग टैक्स इन एवाई। राइट, आपने इनकम अर्न किया ना, हमको भी उस पर टैक्स चाहिए। राइट, हम अगले साल तक आपका वेट क्यों करें? आप अगले साल टैक्स पे करोगे, फिर गवर्नमेंट का फंड्स बढ़ेगा, फिर गवर्नमेंट डेवलपमेंट करेगी। राइट, ऑलरेडी इंडियन गवर्नमेंट का काम लेट है। राइट, बराबर है, उसमें से आप एक साल लेट टैक्स पे करोगे, मतलब एक साल लेट होगा इनकम गवर्नमेंट को, हमको नहीं चलेगा, हमको नहीं चलेगा। अब व्हाट डज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से? यू आर अ बिजनेसमैन, राइट, यू आर अर्निंग इनकम, राइट। हर इंसान को सबसे पहले ओके बनाया ही भगवान ने ऐसा है कि उसको अपना फायदा और अपना नुकसान पहले समझ में आता है। अगर आपको अपना फायदा अपना नुकसान पहले समझ में आता है तो आपको तो पहले पता ही होगा कि आप अगले साल में कितना इनकम अर्न करने वाले हो। आप इस साल में कितना इनकम अर्न करने वाले हो, इसका अंदाजा तो आप लगा ही सकते हो। हाँ ठीक है, गारंटी के साथ नहीं बोल सकते, हमको थोड़ी ना गारंटी वाला टैक्स चाहिए, हमको तो आपके एस्टिमेटेड इनकम पे टैक्स चाहिए। आपने इस साल इनकम अर्न किया ना पीवाई में, तो आप इस पीवाई में क्या करो, उस एस्टिमेटेड इनकम निकालो, जजमेंट निकालो आपकी इनकम का, उसमें से आप क्या करो, उसमें से आप एस्टिमेटेड टैक्स निकालो और हमको एस्टिमेटेड टैक्स पे कर दो। ओके, फिर जब एवाई आएगा तो आप क्या करो, आप एक्चुअल एस्टिमेटेड टैक्स निकालो। अगर आपने ज़्यादा टैक्स पे किया है तो हम आपको रिफंड कर देंगे, अगर आपने कम टैक्स पे किया है तो आप थोड़ा ज़्यादा टैक्स पे करके आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म कर देना। डू यू अंडरस्टैंड द लॉजिक माय डियर स्टूडेंट्स? डू यू अंडरस्टैंड? ओके, सो एडवांस टैक्स इज ऑल्सो नोन एज प्रीपेड टैक्स. It is a tax that you have to pay as you earn, my dear students. Okay, yes, okay. So advanced tax and self-assessment tax, this concept you need to understand these particular concepts, my dear students. Okay, yes, and these are the technical words. Self-assessment tax matlab the final tax, okay, is known as the self-assessment tax. Now how does advanced tax happen, my dear students? हमने क्या देखा? What happens is tax plus surcharge, right? Tax liability less rebate, so balance, उसमें add surcharge, फिर जो tax plus surcharge है उसमें less marginal relief, फिर उसमें cess add होता है, right? So वो क्या हो जाता है? That is our estimated tax liability, my dear students. That becomes our estimated tax liability. Why estimated? क्योंकि अभी तक साल खत्म नहीं हुआ है, इसलिए मुझे गारंटी के साथ पता नहीं है, मैंने मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स अभी तक क्लोज किए नहीं है, इसलिए अभी तक जो टैक्स लाइबिलिटी है वो एस्टिमेटेड है, बिकॉज माई इनकम इज ऑल्सो एस्टिमेटेड. इसमें से लेस हो जाएगा टीडीएस, इसमें से लेस हो जाएगा टीडीएस, माय डियर स्टूडेंट्स. ओके, एंड देन wait, I'll give you the entire chart only. No risks, let's not take any risk. आप क्या करोगे? पहले आप अपना एस्टिमेटेड इनकम निकालोगे. एस्टिमेटेड इनकम निकाला, उस पर आप क्या कंप्यूट करोगे? टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करोगे, माय डियर स्टूडेंट्स. राइट, इसमें से क्या हो जाएगा? लेस टीडीएस हो जाएगा, और फिर जो बचेगा वुड बी आवर एस्टिमेटेड टैक्स, माय डियर स्टूडेंट्स. ओके, नाउ व्हाट डज इनकम टैक्स एक्ट सेज? व्हाट डज इनकम टैक्स एक्ट सेज? अगर ये एस्टिमेटेड टैक्स, माय डियर स्टूडेंट्स, listen to me very carefully, अगर ये estimated tax, my dear students, is less than 10,000, if it is less than rupees 10,000, ओके, आपको ऐसा लग रहा है कि आपका एस्टिमेटेड टैक्स 10,000 से कम होगा, 10,000 से कम, हाँ 10,000 भी होगा तो आपको इनकम टैक्स, एडवांस टैक्स पे करना ही पड़ेगा. अगर लेस होगा तो आप एडवांस टैक्स नहीं पे किया तो चलेगा. ओके, तो यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं? Advance tax will not be applicable. Advance tax will not be applicable. Only self-assessment tax is to be paid. Clear? Clear, everyone? Okay, fine. Now, my dear students, if your estimated tax liability, if this estimated tax liability, my dear students, is 10,000 or more, rupees 10,000 or more, my dear students, then my dear students, okay, चेक करो असेसी कौन है. अगर असेसी इंडिविजुअल है, ओके, और ये इंडिविजुअल अगर रेसिडेंट है, ओके, और अगर इनका एज,
ओके, मोर देन और इक्वल टू 60 ईयर्स है, मतलब ये सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन है. ओके, एंड इनका पीजीबीपी से कुछ इनकम नहीं आ रहा है, थोड़ा रेंटल इनकम है, थोड़ा इंटरेस्ट इनकम है, ऐसा इनकम होगा तो भी इनको एडवांस टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स. नो नीड टू पे एडवांस टैक्स. Okay, because we do not want to create any kind of hardships to these people. अगर कोई इंडिविजुअल है और वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया है और उनका एज अगर 60 ईयर्स से ज़्यादा है माय डियर स्टूडेंट्स, देन इन दैट केस, और मेन कंडीशन पीजीबीपी में कोई इनकम नहीं है, उनका कोई बिजनेस प्रोफेशन नहीं है, बस इंटरेस्ट इनकम है, थोड़ा रेंटल इनकम है, ऐसा है, तो इन दैट केस एडवांस टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं. इन ऑल अदर केसेस, इन ऑल अदर केसेस, okay, you have to pay advance tax. You have to pay advance tax, my dear students. Clear? Clear? Okay, come on, quickly take this down. Then हम देखते हैं कि हमको advance tax कितना पे करना पड़ेगा. Okay? Yes. फिर हम आगे देखेंगे कि हमको advance tax कैसे, कितना, कौन से परसेंटेज में पे करना है. Come on, my dear students. डन माय डियर स्टूडेंट्स. ओके, अब चलते हैं आगे. ओके, तो हमने देखा, क्या देखा कि एस्टिमेटेड इनकम आप फाइंड आउट करो इस पीवाई की. ओके, फिर उसका टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करो, उसमें से टीडीएस लेस कर दो, एस्टिमेटेड टैक्स. ओके, नाउ इफ दिस एस्टिमेटेड टैक्स इज मोर देन 10,000 माय डियर स्टूडेंट, सॉरी लेस देन 10,000, नो एडवांस टैक्स. इफ 10,000 और मोर, एंड अगर कोई सीनियर सिटीजन है जो रेसिडेंट ऑफ इंडिया है और उनका पीजीबीपी इनकम नहीं है तो हम उनसे एडवांस टैक्स नहीं लेंगे. इन ऑल अदर केसेस एडवांस टैक्स विल बी टेकन. ओके, यस. अब एडवांस टैक्स माय डियर स्टूडेंट्स, अब ये जो एडवांस टैक्स की वो बात कर रहे हैं. ओके, हाउ इज दिस एडवांस टैक्स कलेक्टेड, लेट्स सी. ओके, इफ सपोज माय डियर स्टूडेंट्स assessee covered under section 44 AD और 44 ADA. ओके, 44 AD और 44 ADA माय डियर स्टूडेंट्स, याद आया? पीजीबीपी प्रिजम्पटिव इनकम बराबर है 44 AD और 44 ADA में अगर आप कवर होते हो तो आपका एडवांस टैक्स ओनली वन इंस्टॉलमेंट, you have to pay it only in one installment my dear students. Okay, that is 15th March पे आपको 100% टैक्स पे करना है. Okay, in case of other assessees, everyone, in case of all other assessees my dear students, in case of all other assessees, okay, जो 15th June तक, okay, up to 15th June you have to pay 15% of tax my dear students. Okay, then up to 15th September you have to pay 45% of tax. Up to 15th December you have to pay 75% of tax, and up to 15th March my dear students you have to pay 100% of tax. Do you understand? Do you understand? मतलब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 30% एक्स्ट्रा उनको पे करना है 15/9 तक,
फिर यहाँ पे फिर से 30% पे करना है उनको 15-12 तक, और यहाँ पे 25% एक्स्ट्रा पे करना है 15 मार्च तक। डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स? Okay, yes, so these are the various installments. Okay, advance tax. अगर advance tax, if the assessee is covered under section 44 AD और 44 ADA, सिर्फ एक ही इंस्टॉलमेंट, एक बार में ही एडवांस टैक्स पे कर दो, 15 मार्च को पे कर दो, 100% अमाउंट ऑफ टैक्स पे कर दो. If you are not covered under 44 AD and 44 ADA, if you are other assessee, in that case आपको एडवांस टैक्स इन 4 इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है. 15th जून, 15th सितंबर, 15th दिसंबर एंड 15th मार्च. 15%, टोटल 45%, टोटल 75%, टोटल 100%. मतलब 15% आपको 15 जून तक पे करना है, फिर और 30% आपको 15/9 तक पे करना है, और 30% आपको पे करना है 15/12 तक, एंड और 25% आपको पे करना है 15th मार्च तक. ओके, आगे माय डियर स्टूडेंट्स. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड, वॉट एवर पेमेंट यू मेक, whatever payment you make from 15th March to 31st March, my dear students, whatever payment you make on 15th March to 31st March, my dear students, this would be deemed to be advance tax. This would be deemed to be advance tax, my dear students. But सिर्फ एक ही चीज़ है कि you have to pay plus interest. You have to pay interest on this particular amount. मतलब एक्चुअली उन्होंने ड्यू डेट दी है 15 मार्च तक, बट आप 31 मार्च तक कोई भी टैक्स का अमाउंट अगर आप पे करते हो तो इट विल बी ट्रीटेड डीम्ड टू बी एडवांस टैक्स, माय डियर स्टूडेंट्स. ओके, यस, एंड ऑन दीज पर्टिकुलर डेट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, very important, on if these particular dates is a holiday, okay, if it is a holiday, then in that case, my dear students, if these particular days are holidays, my dear students, then next following working day would be what? Treated as the payment date, next working day. ओके, तो क्या यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज होगा? यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज होने का सवाल ही नहीं उठता, नॉट एप्लीकेबल. डू यू अंडरस्टैंड? इंटरेस्ट इज नॉट चार्जेबल, करेक्ट, क्योंकि इट वॉज अ वर्किंग डे नहीं था, इट वॉज अ हॉलीडे. डू यू अंडरस्टैंड? यस माय डियर स्टूडेंट, इजी, सिंपल, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है. Okay, yes, come on, please take this down, my dear students. Done, my dear students? Done, my dear students? Okay. Yes. Let's go ahead further. ओके, तो हमने क्या देखा? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है एडवांस टैक्स का, समझ लो तो इससे इजी कोई नहीं है. समझ में नहीं आया तो कभी समझ में नहीं आएगा. ओके, क्या बोला गया है कि एक्चुअली पीवाई में हम लोग इनकम अर्न करते हैं और एवाई में हम लोग टैक्स पे करते हैं, करेक्ट. ओके, पीवाई में हम लोग इनकम अर्न करते हैं, एवाई में हम लोग टैक्स पे करते हैं. तो जो पीवाई में कई बार पीवाई में इनकम अर्न करते हैं, राइट, तो गवर्नमेंट क्या बोलता है, आप तो इनकम अर्न करते हो पीवाई में, हमारा इनकम आप अगले साल दोगे इन द फॉर्म ऑफ टैक्स. ऐसा नहीं चलेगा. आपको क्या करना पड़ेगा? यू विल हैव टू पे टैक्स, यू विल हैव टू पे एडवांस टैक्स ऑन द इनकम दैट यू आर अर्निंग. ओके, एडवांस टैक्स कैसे कंप्यूट करते हैं? एस्टिमेटेड इनकम. ओके, इनकम को आप एस्टिमेट करो, टैक्स लायबिलिटी आएगा, राइट, उस पर टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करो, लेस टीडीएस, दैट इज द एस्टिमेटेड टैक्स. इफ इट इज लेस देन 10,000 तो एडवांस टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है. इफ इट इज 10,000 और मोर,
ओके तो फिर देखना है कि असेसी कौन है। अगर सीनियर सिटीजन है और रेसिडेंट ऑफ इंडिया है और अगर उनका पीजीबीपी इनकम नहीं है तो एडवांस टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। इन ऑल अदर केसेस यू हैव टू पे एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स कौन कैसे किस तरीके से पे करता है? एडवांस टैक्स इफ असेसी इज कवर्ड अंडर सेक्शन 44 AD और ADA, माय डियर स्टूडेंट्स, 44 AD and ADA, then you have to pay only one installment. Okay, only one installment up to 15th of March, wherein you have to pay 100% of the tax. And if you are other assessees not covered under 44 AD, 44 ADA, in that case 15th June, 15th September, 15th December, 15th March. जून सितंबर दिसंबर मार्च, जून सितंबर दिसंबर मार्च, हर 3 महीने में आपको क्या करना है? आपको एडवांस टैक्स का कुछ प्रपोर्शन पे करना है। मतलब आप पे भी बर्डन नहीं और गवर्नमेंट को भी इनकम मिल रहा है। ओके यस। अब व्हाट परसेंटेज ऑफ एडवांस टैक्स? 15% ऑफ टैक्स ऑन 15th ऑफ जून, बराबर है। फिर और 30% पे करो 15th ऑफ सितंबर को, मतलब टोटल कितना हो गया? 15 + 30 45%। फिर और 30 पे करो 15th ऑफ दिसंबर को, मतलब 45 + 30 कितना हो गया? 75% ऑफ टैक्स। फिर और 25% पे करो कब? on 15th of March. Okay, मतलब 100% of tax हो गया। Okay, if any amount is paid as tax till 31st of March, it would be treated as deemed advance tax and interest you have to pay on it. Okay, अगर इनमें से किसी भी दिन छुट्टी रही तो next working day would be treated as the day wherein you have to pay advance tax. Okay, तब interest उस एक दिन के लिए applicable नहीं हो जाएगा, my dear students. Okay, yes. This is all about advance tax. Let's quickly go through the theory. ओके यस स्टूडेंट्स। सो लायबिलिटी टू पे एडवांस टैक्स, उन्होंने क्या बोला है कि अगर कोई सीनियर सिटीजन होगा, पीजीबीपी इनकम नहीं है, तो आपको एडवांस टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। हु इज लायबल टू पे? एवरी पर्सन, ओके, जिनका 10,000 या 10,000 से ज्यादा एस्टिमेटेड टैक्स होगा। ओके, कॉम्प्यूटेशन ऑफ एस्टिमेट एडवांस टैक्स कैसे करते हैं? आप अपना एस्टिमेटेड टोटल इनकम निकालो, उस पर टैक्स लायबिलिटी निकालो, सारा लेस ऐड कर दो, सेस रिलीफ सब कुछ, एंड देन टीडीएस लेस करो, जो अमाउंट आएगा दैट इज योर एस्टिमेटेड टैक्स। ओके, अब सपोज माय एग्जांपल माय डियर स्टूडेंट्स, अब क्या होता है ना, असेसी खुद से अगर एडवांस टैक्स पे करता है तो कॉम्प्यूटेशन दिया है। कई केसेस में क्या होता है ना, असेसी नहीं पे करता बट एओ को क्या करना पड़ता है? एओ हैज टू what? AO has to estimate advance tax payable by the assessee. Okay, अब AO कब कर सकता है ये? AO कब कर सकता है ये? See, understand, मतलब आपने अगर कोई रीजन दिया होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि आप पे भरोसा ना किया जाए। आप पे भरोसा कब नहीं किया जाएगा? जब आप स्क्रूटिनी, आपने डिटेल्ड आपका कोई इनकम बताया नहीं है, पर हमने डिटेल्ड असेसमेंट करने के बाद हमको कुछ हिडन इनकम आपके पता चले। आपने कुछ इनकम छुपा के रखा था, इसलिए हमने इनकम एस्केपिंग असेसमेंट किया, राइट, सॉरी बीजे किया, बिजनेस, हमने बेस्ट जजमेंट असेसमेंट किया, बीजे। ओके, सो सेक्शन 143(3) कभी अगर आपको हमने रंगे हाथों पकड़ा है, कौन से सेक्शन के अंडर? 143(3) के अंडर, स्क्रूटिनी के अंडर, या तो आपने हमारे हर चीज को क्या करके, नजरअंदाज करके, अगर हमको बेस्ट जजमेंट असेसमेंट किसी भी साल में करने लगाया है तो हम आपको हमेशा एक क्या गुनहगार की नजर से ही देखेंगे। तो अगर एओ को लगा है कि नहीं बाबा मुझे इस एसएससी पे भरोसा नहीं है और मुझे इस पे एडवांस टैक्स मैं कैलकुलेट करूंगा, okay, so in that case assessing officer AO can calculate compute advance tax, my dear students. Okay, yes, ahead तो उस केस में how will the AO compute? हम कैसे कंप्यूट करेंगे? तो सिंपल है, एओ कैसे कंप्यूट करेगा? ओके, वो क्या करेगा? जिस साल उसने स्क्रूटिनी किया है, जिस साल उसने बेस्ट जजमेंट असेसमेंट किया है, उस दिन का उसका, उस साल का उसका टोटल इनकम लेगा। उस साल का इनकम लिया और आज तक आपने जितने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल किए, आपका इनकम कितना आएगा, बराबर है? यस, टोटल इनकम लिया, उसमें से टेक द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ स्टेप 1 और स्टेप 2, राइट। फिर उस पर आप टैक्स कंप्यूट करो, टैक्स कंप्यूट करने के बाद लेस रिबेट एट सरचार्ज, लेस मार्जिनल रिलीफ एट सेस एंड लेस टीडीएस, बराबर है? मतलब ये स्टेप्स सेम है, सिर्फ इनकम लेने का उनका तरीका अलग है। उन्होंने क्या बोला है कि जिसका असेसमेंट एओ ने किया है वो इनकम लो, राइट, फिर बाकी सारे इनकम ऐड करो और असेसी के हिसाब से इनकम लो, दोनों में से जो हायर है उसके ऊपर आप टैक्स निकालो। ओके, यस, देन फर्दर माय डियर स्टूडेंट्स, फिर क्या होगा? ये मतलब एओ ने अगर एडवांस टैक्स कंप्यूट किया, ओके, यस, और अगर उसने कोई इंटीमेशन भेजा,
और अगर इस इंटीमेशन को रिवाइज भी किया तो उसका फॉर्म नंबर कौन सा है, 28। एक्चुअली इतना डिटेल में नहीं है बट आपकी नोट्स में दिया है, इसलिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ओके, नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाता। ओके, लास्ट डे फॉर सर्विस ऑफ फॉर्म नंबर 28 इज व्हाट, लास्ट डे ऑफ फेब्रुवरी मंथ। आपको फेब्रुवरी का 28 या 29, लीप ईयर होगा तो 29 डेज। ओके, 29th ऑफ फेब्रुवरी या तो 28th ऑफ फेब्रुवरी वुड बी लास्ट डेट जब आपको ये नोटिस आप सर्व कर सकते हो। यस, आगे फर्दर, हाउ मच टैक्स इज टू बी पेड इन एडवांस। ओके, हाउ मच टैक्स जो कॉम्प्यूट होगा वो इतना एडवांस टैक्स आपको पे करना है। करेक्ट, यहाँ पे उन्होंने दिया है कि अगर आप 44 AD में कवर हो तो 100% आपको कब पे करना है, लास्ट एक ही इंस्टॉलमेंट में, वरना 15%, 45%, 75% एंड 100% माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, यस, फर्दर यहाँ पे उन्होंने बोला है कि 15 मार्च, 16 मार्च और 31 मार्च के बीच में अगर आप कुछ पे करते हो देन इट वुड बी ट्रीटेड एज एडवांस, बट आपको इंटरेस्ट उस पर पे करना पड़ेगा। ओके, यस, फर्दर, व्हेन असेसी इज डीम्ड टू बी इन डिफॉल्ट, अगर एओ ने आपको बोला है कि आप क्या करो, एडवांस टैक्स पे करो, उसने कॉम्पिटिशन करके दिया है पर आपने माना नहीं, तो आप असेसी इन डिफॉल्ट। गवर्नमेंट को उसके इनकम से अगर आप दूर रखते हो तो यू बिकम असेसी इन डिफॉल्ट। नाउ व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स माय डियर स्टूडेंट, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज अगर आपने एडवांस टैक्स नहीं पे किया। ठीक है, अभी ये डिपार्टमेंट बोल रहा है कि आप एडवांस टैक्स पे करो, अगर आपने एडवांस टैक्स नहीं पे किया तो ऐसा क्या कहर उठ जाएगा, ऐसा क्या हो जाएगा। ओके, इट इज बीन कवर्ड, आप पे क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट विल बी लायबल बट नॉट पेनल्टी। पेनल्टी नहीं आएगी, there is no penalty for advance tax. Very important for MCQs my dear students, very important for MCQs. Okay, consequences of non payment of advance tax are option A, penalty। सबसे पहले तो non payment बोला कि सबसे पहले अपने दिमाग में पेनल्टी आता है, राइट। पेनल्टी, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C एंड ऑल ऑफ द अबाव। तो आप क्या करोगे, इमीडिएटली यू विल गो एंड टिक ऑल ऑफ द अबाव। बट मैंने ऑप्शंस क्या बोले माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट पेनल्टी आता नहीं है। 234A इज फॉर नॉट फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। एडवांस टैक्स के लिए एडवांस टैक्स से रिलेटेड सिर्फ 2 इंटरेस्ट है माय डियर स्टूडेंट्स, सिर्फ 2 इंटरेस्ट है एडवांस टैक्स से रिलेटेड, 234B एंड 234C। सो द करेक्ट आंसर वुड बी C, 234C। ओके, वही इसीलिए ऐसा होता है ना कि एग्जाम तो बहुत ईजी थी बट फिर भी हम क्लियर नहीं हो पाए, राइट क्योंकि यहाँ पे वी हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल व्हाइल चूजिंग द करेक्ट आंसर माय डियर स्टूडेंट्स। डू यू गेट इट? ओके, यस। सो क्या बोला गया है कि अगर आप एडवांस टैक्स ना पे करो तो पेनल्टी नहीं है, बट यू विल हैव टू पे इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B एंड 234C। ओके, यस। ये इंटरेस्ट क्या है मैं आपको अभी बताती हूँ। ओके, लेट्स गो इन डिटेल विथ इंटरेस्ट ऑन एडवांस टैक्स। ओके, यस। ना अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स, ये 2011A, राइट, याद आया। टीडीएस पे हमने देखा है कि 1% और 1.5% पर मंथ डिपेंड्स। ओके, यस। आगे माय डियर स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A, 234B एंड 234C। नाउ व्हाट डज इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A-B-C सेज। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि इनकम टैक्स में इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सिंपल इंटरेस्ट, देयर इज नो कंपाउंडेड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में हम इंटरेस्ट कैसे कंप्यूट करते हैं, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम पीरियड, राइट। तो हमको 234A-B-C जब हम कंप्यूट करेंगे तो मैंने यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से आपको क्या करके दिया है, मैंने PRT लिख के दिया है। ओके, यस माय डियर स्टूडेंट्स, पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, पहले कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। ओके, सो 234A तो बहुत सिंपल है, वो हम यहीं से देख लेते हैं। इफ असेसी डजंट फाइल ITR और ITR इज फाइल्ड आफ्टर ड्यू डेट, वेरी इंपॉर्टेंट। if assessee doesn't file ITR my dear students, और if ITR is filed after due date, तो आपको क्या करना है, मतलब क्या, आपका ड्यू डेट है, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न है आपको, बराबर है। अगर आप ऑडिट में कवर्ड हो तो 31 अक्टूबर, अगर ऑडिट में नहीं कवर्ड हो तो 31 जुलाई, और अगर आप कंपनी हो तो किसी भी हालत में 31 अक्टूबर। ठीक है, ये आपको ड्यू डेट्स दिए हैं। क्यों दिए हैं ड्यू डेट्स? टू कॉम्प्लाई विथ, राइट। उनके आपने अगर उन डेट्स की इज्जत ही नहीं करी, राइट, आपने रिटर्न ऑफ इनकम ड्यू डेट पे फाइल ही नहीं किया, राइट, तो क्या गवर्नमेंट छोड़ देगी? गवर्नमेंट पागल है जो आपको इतने सारे ड्यू डेट्स देती है, राइट, इतने सारे कॉम्प्लायंसेस की डेट्स देती है? नो, तो उसको आपको पनिशमेंट मिलेगा। यू विल हैव टू पे इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A, ओके, अंडर सेक्शन 234A। तो क्या बोला गया है, कितना इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा? फर्स्ट इज टैक्स ऑन असेस्ड इनकम। मतलब क्या, सी अंडरस्टैंड टैक्स ऑन असेस्ड इनकम
एंड टैक्स ऑन एस्टिमेटेड इनकम। टैक्स ऑन असेस्ड इनकम मतलब क्या? आपका पीवाई खत्म हुआ, एवाई में आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज किया, आपने फाइनलाइज किया और आपने रिटर्न फाइल किया, राइट? ओके, दैट इज रिटर्न्ड इनकम। आपने रिटर्न फाइल नहीं किया और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में असेसमेंट किया और उन्होंने फाइनल किया कि दिस इज योर टैक्स लायबिलिटी एंड यू हैव टू पे सो मच ऑफ टैक्स, दैट इज असेस्ड इनकम। अंडरस्टैंडिंग? सो टैक्स ऑन असेस्ड इनकम, क्योंकि आपने आरटीआर तो फाइल ही नहीं किया है, या अगर आईटीआर लेट फाइल किया है तो कितना टैक्स आपने कॉम्प्यूट किया? आपने सेल्फ असेसमेंट में आपने कितना टैक्स निकाला है? सो टैक्स ऑन असेस्ड इनकम लेस टीडीएस। अगर कोई एडवांस टैक्स पे किया होगा तो ठीक, नहीं पे किया होगा तो आपको यहाँ पे डिडक्शन नहीं मिलेगा। सीधी बात है ना? सीधी बात है। सी, सो अंडर सेक्शन 139 I'll write here. से अंडर सेक्शन 234A क्या बोला गया है? पहले क्या करो? टैक्स फाइंड आउट करो। टैक्स, अगर आपने आईटीआर फाइल ही नहीं किया है और अगर डिपार्टमेंट ने असेसमेंट किया है तो डिपार्टमेंट की असेस की हुई इनकम पे टैक्स कंप्यूट करो। अगर आपने खुद ने आईटीआर फाइल किया है बट लेट फाइल किया है तो सेल्फ असेसमेंट में आपने कितना इनकम कंप्यूट किया है, उस पर कितना टैक्स आता है वो लो, उसमें से लेस हो जाएगा टीडीएस। लेस अगर आपने कुछ एडवांस टैक्स पे किया होगा तो लेस हो जाएगा, बराबर है ना? सी, एडवांस टैक्स क्या होता है? एडवांस टैक्स वो पार्ट है जो आपने क्या किया है, एक्चुअली एवाई में पे करना रहता है बट आप एडवांस में पे करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल से मैंने एस्टिमेट किया था कि मेरा इनकम 10 लाख होगा इस साल का और मैंने 5 लाख का टैक्स पे किया है पीवाई में एज एडवांस टैक्स। पर क्या होता है, असेसमेंट ईयर आता है, असेसमेंट ईयर में चलो 10 लाख का इनकम 15 लाख हो गया, ओके, और वहां पे एक्चुअल टैक्स इनकम कितना आया? से 6.5 लाख रुपए, बराबर है? तो अब मुझे एवाई में क्या पूरे की पूरे 15 लाख पे टैक्स पे करने की जरूरत है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि 10 लाख पे मैं ऑलरेडी एडवांस टैक्स पे कर चुकी हूँ, सिर्फ मुझे बैलेंस 5 लाख पे क्या करना है? टैक्स पे करना है एवाई में। ओके, तो जो बैलेंस 5 लाख पे हम टैक्स पे करते हैं उसको बोलते हैं असेसमेंट टैक्स। क्लियर? ओके, यस। और जो पीवाई में पे करते हैं उसको एडवांस टैक्स बोलते हैं, तो वो हम लेस कर देंगे, फिर जो आएगा, ओके, फिर 1% पर मंथ और पार्ट, 1% पर मंथ और पार्ट, माय डियर स्टूडेंट्स। इंटरेस्ट डिडक्ट करेंगे कि इंटरेस्ट ऐड करेंगे? अनुष्का इज आस्किंग कि जब हम टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करेंगे तो एडवांस टैक्स लेस करेंगे और इंटरेस्ट भी लेस करेंगे क्या? इंटरेस्ट गवर्नमेंट एज अ पनिशमेंट आपसे कलेक्ट करेगा कि माफ करेगा? व्हाट आर यू सेइंग गर्ल? यस, आप ही बताओ, आप इस सवालों के जवाब थिंक, मेरे हिसाब से सोचो। गवर्नमेंट आपसे एक्स्ट्रा चाहता है इंटरेस्ट, क्योंकि आपने पे नहीं किया, तो एडवांस टैक्स, तो आपको इंटरेस्ट विल बी एडेड, क्योंकि इट विल बी अ पनिशमेंट। आपको टैक्स जो पे करना था उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। ओके, यस, प्लीज वेट, सब समझ में आ जाएगा, जस्ट कीप सम पेशेंस। ओके, अब 234A पहले पूरा समझते हैं। 234A का टाइम पीरियड क्या आएगा? पी तो हमने देख लिया, आर हमने देख लिया, अब टी क्या आएगा? फ्रॉम ड्यू डेट। ड्यू डेट सपोज फॉर एग्जाम्पल 31 अक्टूबर है, टिल डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। आपने कब रिटर्न फाइल किया है एक्चुअली, उस डेट तक। ओके, अब माय डियर स्टूडेंट्स, अब लास्ट डेट क्या है? 31 अक्टूबर, बराबर है ना? मतलब 31 अक्टूबर तक आप भरो तो चलेगा, तो मैं इंटरेस्ट कब से कंप्यूट करूंगी? 1 तारीख से कंप्यूट करूंगी, नेक्स्ट डे से कंप्यूट करूंगी। डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? इफ माय ड्यू डेट इज 31 जुलाई माय डियर स्टूडेंट्स, तो 1 अगस्त टू डेट ऑफ ROI, एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम, मैं इंटरेस्ट चार्ज करूँ। क्लियर? क्लियर एवरीवन? ओके, यस, बहुत सिंपल है ये तो। 234A में तो कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। 234A बहुत सिंपल है। अगर आपने ROI फाइल नहीं किया या लेट फाइल किया तो जितना टाइम पीरियड आपने लेट फाइल किया है उतने का आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। करेक्ट? ओके, ठीक है, यस, क्योंकि गवर्नमेंट को अपना उतना एडवांस टैक्स लेट मिला। अब सेक्शन 234B माय डियर स्टूडेंट्स, ओके, सी अंडरस्टैंड। मैं अब 234B क्यों आया ये आपको पहले लॉजिक बताऊंगी। से व्हाट हैपेंस इज, ये अपना पीवाई है, मानो ये अपना पीवाई है, ये अपना एवाई है। पीवाई में क्या पे करना पड़ता है? एडवांस टैक्स पे करना पड़ता है, और एवाई में सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करना पड़ता है। अब लोग क्या करने लगे? ओके, लोग क्या करने लगे? कम एडवांस टैक्स पे करने लगे। ये जो एडवांस टैक्स पे करना है ना,
ओके वो लोग क्या करने लगे, कम एडवांस टैक्स पे करने लगे, और बिकॉज उन लोगों ने कम एडवांस टैक्स पे करना स्टार्ट किया माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हुआ, गवर्नमेंट का लॉस हुआ। उल्टा वो क्या करते थे, एडवांस टैक्स का पैसा रखते थे साइड में, ओके वो इन्वेस्ट कर देते थे, एंड देन दे यूज्ड टू अर्न इंटरेस्ट इनकम, राइट। और पर गवर्नमेंट का तो इसका नुकसान हो रहा था ना, गवर्नमेंट के पास टैक्स कम जा रहा था, राइट। देयरफॉर उन्होंने क्या किया, सेक्शन 234B इंसर्ट किया। देयरफॉर उन्होंने सेक्शन 234B इंसर्ट किया। अब उनका क्या कहना है कि जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स आता है, ओके जो आपका असेस्ड टैक्स आता है इन AY, सी अंडरस्टैंड, जो आपका असेस्ड टैक्स है इन AY, ओके इसका 90% तो आपको एडवांस टैक्स में पे करना पड़ेगा, ओके मतलब क्या, अभी आप बिजनेस करते हो, राइट। अगर आप जी रहे हो जिंदगी, तो आपको पता है ना कि आपके पास कितना इनकम आने वाला है और कितना इनकम नहीं आने वाला, इतना तो एस्टिमेट कोई भी इंसान निकाल सकता है, बराबर है ना। तो आप आपका एस्टिमेट निकालो, ओके आप आपका एस्टिमेट निकालो, और उसका 90% टैक्स आपको क्या करना है, आपके इनकम का 90%, आपके असेस्ड टैक्स का 90% आपको PY में पे करना है इन द फॉर्म ऑफ एडवांस टैक्स, ओके। अगर आप नहीं पे करते, ओके यू हैव टू पे मिनिमम 90% या 90% से ज्यादा, ओके मतलब उन्होंने क्या बोला है कि गलती हो सकती है ना, कोई भी परफेक्ट बता नहीं सकता, राइट तो गलती हो सकती है ना, 10% की गलती हो सकती है, 10% का वेरिएशन हम आपको अलाउ करेंगे। अगर आपने इससे कम पे किया एडवांस टैक्स, देन यू हैव टू पे इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B। मतलब इन शॉर्ट उनका क्या कहना है कि आप PY में ही ज्यादा इनकम एस्टिमेट करो और ज्यादा आप एडवांस टैक्स पे करो, ओके आप ज्यादा एडवांस टैक्स पे करो, ओके अगर आपका एडवांस टैक्स इस सेल्फ असेसमेंट टैक्स से ज्यादा होगा तो हम आपको रिफंड दे देंगे, कम होगा तो जितना कम होगा उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, ओके पर मिनिमम आपका जो ये इनकम इस साल में आएगा ना, इस टैक्स का आपको 90% तो मिनिमम आपको पे करना इन द फॉर्म ऑफ एडवांस टैक्स, ओके। और ये भरने का, ये 90% पे करने का डेट हम लोग आपको कब देंगे, इसका डेट 90% पे करने का डेट वुड बी 31st ऑफ मार्च ऑफ PY। 31st ऑफ मार्च ऑफ PY तक हम आपको वक्त देंगे कि 90% पैसा भर दो। अगर आपने भरा तो ठीक, अगर नहीं भरा तो फ्रॉम 1/4 ऑफ AY, मतलब AY जब से स्टार्ट होगा आपका इंटरेस्ट चालू हो जाएगा। अंडर विच सेक्शन, अंडर सेक्शन 234B। मतलब 234B क्या बोलता है, अंडरस्टैंड 234B क्या बोलता है, 234B क्या बोलता है कि आपका जो असेसमेंट टैक्स आने वाला है उसका 90% आपने एडवांस टैक्स पे करना चाहिए। अगर आपने नहीं पे किया तो कितना आपका शॉर्टफॉल पे आपको क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ओके। ये इंटरेस्ट कब से कैलकुलेट होगा, ओके अब सबसे पहले उन्होंने टाइम लिमिट कब दिया है, अब 90% भरने का टाइम लिमिट कब दिया है, 31 मार्च, मतलब 31 मार्च तक इंटरेस्ट नहीं ले सकते। उसके बाद 1 अप्रैल से वो क्या लेंगे, 234B के अंडर आपसे क्या लेंगे, एडवांस टैक्स लेंगे। अगर नहीं समझा है, कंफ्यूज मत हो, आई टेक अ स्मॉल एग्जांपल। से दिस इज योर PY एंड दिस इज योर AY, ओके। PY में हमने एस्टिमेट किया, PY ने हमने एस्टिमेट किया कि से हमारा एडवांस टैक्स, ओके PY में हमने एस्टिमेट किया इनकम सो एंड सो आएगा, और हमने एस्टिमेट किया कि हमारा इनकम टैक्स लायबिलिटी आएगा 50,000, ओके और हमने क्या किया, इस पे हमने एडवांस टैक्स पे कर दिया, ओके ये 50,000 जो है, ये 50,000 बतौर एडवांस टैक्स हमने पे कर दिया। बट जब एक्चुअली असेसमेंट ईयर में हमने टैक्स निकाला तो हमारी टैक्स लायबिलिटी आई 55,000। दिस इज व्हाट, दिस इज एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी, बराबर है ना, ओके। अब उनका क्या कहना है, 55,000 का 90% तो मिनिमम कितना आता है, इज इट 49,500, आपको मिनिमम 90% पे करना है, ओके आपने पे कितना किया है, आपने 50,000 पे किया है, मतलब आपने ज्यादा पे किया है, तो 234B का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। सिर्फ ये जो 5,000 है ना, इस 5,000 सी ना, 50,000 माइनस 55,000 एक्स्ट्रा कितना हुआ है टैक्स, 5,000, आपको ये 5,000 एज टैक्स पे करना पड़ेगा इन AY। डू यू अंडरस्टैंड, इन AY, सिंपल, समझ में आया। मतलब उनका क्या कहना है कि आपको इतने प्रिसीशन से
ओके आपको इतने डिटेल तरीके से एडवांस टैक्स कंप्यूट करना है कि ये जो टैक्स आएगा ना असेसमेंट ईयर के, इसका 90% तक तो आपको पे करना है। और इस पे करने का डेट कब दिया है उन्होंने, इस ये पे करने का डेट कब दिया है, 31 मार्च ऑफ PY। मतलब ये जो इंटरेस्ट चालू होगा, ये जो 234B का इंटरेस्ट चालू होगा वो कब से चालू होगा, 1/4 ऑफ AY, ओके, टू डेट ऑफ पेमेंट। डू यू अंडरस्टैंड? Do you understand? Yes, everyone? Yes or no? Okay, let's take a practical problem. One more. Okay, yes, say this is your PY, this is your AY. Okay, मानो कि मैंने 40,000 एस्टिमेट किया है मेरा टैक्स लायबिलिटी आना चाहिए, बट एक्चुअली मेरा टैक्स लायबिलिटी आया 60,000। एक्चुअली मेरा टैक्स लायबिलिटी आया 60,000 माय डियर स्टूडेंट्स। ओके फाइन, ठीक है, ओके फाइन, ठीक है। रिटर्न का ड्यू डेट, रिटर्न का ड्यू डेट कितना था, 31 ऑफ जुलाई। और रिटर्न फाइल मैंने कब किया है, आई फाइल्ड द रिटर्न ऑन 15 ऑफ अक्टूबर। ओके ओके, अब लेट फाइलिंग रिटर्न है, हाँ, तो सेक्शन 234A के अंडर डू आई हैव टू पे इंटरेस्ट, यस, बिकॉज लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न है। तो उन्होंने क्या बोला है, लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न में कितना उन्होंने बोला है, कितना आएगा प्रिंसिपल, इट इज P इंटू R इंटू T। अब P कितना आएगा, P इज वॉट, असेस टैक्स, दैट इज 60,000, लेस कुछ TDS होगा, तो TDS कुछ है नहीं, और लेस एडवांस टैक्स ऑलरेडी पेड, 40,000 यू हैव ऑलरेडी पेड। मतलब ये जो 20,000 है इस पे क्या करना पड़ेगा, व्हाट इज रेट, 1% पर मंथ, बराबर है ना। कितने महीने से लेट किया है आपने, 8, 9, 10, 3 मंथ्स लेट किया है, सो इंटू 1% इंटू 3, ये क्या हो जाएगा, दिस इज इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A, दिस इज इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A। ओके ठीक है, अब सेक्शन 234B एप्लीकेबल होगा कि नहीं ये हमको देखना पड़ेगा। सेक्शन 234B एप्लीकेबल होगा कि नहीं ये चेक करने के लिए अपना व्हाट इज द टेस्ट, एसेस टैक्स कितना है 60,000, इसका 90% कितना आता है, इसका 90% है 54,000, राइट, इसका 90% है 54,000, यस और नो, यस। पर आपने कितना पे किया है, क्या आपने 54,000 या 54,000 से ज्यादा पे किया है, नहीं, आपने सिर्फ 40,000 पे किया है। सो विल देयर बी इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B, यस देयर विल बी इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B। अब कितना आएगा, अब कितना आएगा माय डियर स्टूडेंट्स, ये समझना बहुत जरूरी है। ओके यस, इट इज P इंटू R इंटू T, ठीक है। अब यहाँ पे P कितना आएगा, P कितना आएगा बताओ माय डियर स्टूडेंट्स, कितना आएगा, 60,000 असेस टैक्स है, TDS कुछ है नहीं, हमने एडवांस टैक्स 40,000 पे किया है, मतलब हमें और 20,000 पे करने की जरूरत थी। ओके हमें और 20,000 पे करने की जरूरत थी, ठीक है। ओके अब इसका इंटरेस्ट कितना आएगा, रेट कितना है 1% पर मंथ, बराबर है। अब ये टाइम पीरियड माय डियर स्टूडेंट्स कब से स्टार्ट होगा, 234B स्टार्ट्स फ्रॉम 1st ऑफ अप्रैल, क्योंकि 31 मार्च तक आपको वक्त दिया गया था कि आप 54,000 पे कर दो। अगर आपने 54,000 का एडवांस टैक्स पे किया होता तो 234B में एडवांस तो इंटरेस्ट नहीं आता, बट 54,000 ना पे करते हुए क्योंकि आपने सिर्फ 40,000 पे किया है तो देयर विल बी इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B। ओके, और आपको वक्त कब तक दिया गया है, द टाइम लिमिट दैट हैज बीन प्रोवाइडेड टू यू माय डियर स्टूडेंट्स इज व्हाट, इज अप टू 31 ऑफ मार्च। इसलिए आपको जो इंटरेस्ट पे करना है आपको 1st ऑफ अप्रैल से इंटरेस्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। सो इंटरेस्ट वुड बी एप्लीकेबल फ्रॉम 1/4/21 टू कब रिटर्न फाइल किया है उन्होंने 15/10/21। सो दैट कम्स टू हाउ मच माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ मेनी मंथ्स, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड और पार्ट बोला है मतलब 15 दिन है, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज 1 मंथ। सो 7 months माय डियर स्टूडेंट्स, सो 7 months माय डियर स्टूडेंट्स। ओके एंड इट इज 1% पर मंथ, तो 7/12 का कोई सवाल ही नहीं उठता। क्लियर, एनी डिफिकल्टीज, एनी डिफिकल्टीज माय डियर स्टूडेंट्स। ओके यस, आई गिव यू अ स्मॉल एग्जाम्पल। हाँ एक काम करो, पहले लिख के ले लो। ओके if you want you can draw this diagram and then I'll give you a small example। चलो ये ऊपर जो डायग्राम मैंने लिखा है ना, give the headline as section 234B interest। okay, draw this particular diagram and then
We shall go ahead with an example. I'll give you one example. You have to solve it on your own, my dear students. Done, my dear students? Okay, my dear students. Okay, yes, let's take a small example. Very simple. एक बार अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, it's never difficult. Let's take a small example. You have to solve it on your own. Say advance tax paid is equal to rupees 80,000. Assessed tax is rupees 1,40,000. Okay, paid on 15/11/21. Okay, yes. Compute interest under section 234B, my dear students. Come on, your time starts now. Tell me what would be interest under section 234B, my dear students. Come on. Done? Come on, waiting for your answers. The first most important thing is we will have to check whether 234B would be applicable. Okay, assessed tax कितना है 1,40,000. So 1,40,000 into 90% comes to 1,26,000. But उसने कितना पे किया है? उसने सिर्फ 80,000 पे किया है, my dear students, right? तो कम पे किया है. तो कितना कम पे किया है? 1,40,000 minus 80,000. कितना कम पे किया है? 60,000. So 60,000 into 1%. इंटू टाइम पीरियड 234B का टाइम पीरियड कैलकुलेट करते वक्त हम हमेशा 1 अप्रैल से कंप्यूट करेंगे. सो अप्रैल 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 8 months. So that comes to rupees 4,800. ओके, ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं माय डियर स्टूडेंट्स इन योर एग्जाम्स. क्लियर एवरीवन? 100%? Yes? Okay, let's go to the last section of interest under section 234C. What does 234C says, my dear students? What does 234C says? मैंने बोला आपको इंडिया है, इंडिया में सब कुछ होता है, राइट? तो अभी असेसी ने क्या सोचा? बहुत ही ब्यूटीफुल दिमाग लगाया असेसी ने.
अब असेसी ने क्या सोचा, ओके, ये मानो अपना पी वाई है और ये मानो अपना ए वाई है, ओके। तो व्हाट डज एडवांस टैक्स से, सी अंडरस्टैंड व्हाट डज एडवांस टैक्स सेज कि आप 15 जून तक 15% पे करो, फिर आप 15 सितंबर तक 45% पे करो, फिर आप 15 दिसंबर तक 75% पे करो, फिर आप 15 मार्च तक 100% पे करो, राइट। यहाँ पे वो जो पे करोगे इट वुड बी डीम टू बी एडवांस टैक्स, पर आपको इस पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। अब समझो, अब इंडिया है, राइट, इंडिया है। 234A ने क्या बोला है कि रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं किया या लेट फाइल किया, तो हमने तो रिटर्न ऑफ इनकम विद इन ड्यू डेट फाइल किया, ओके। 234B क्या बोलता है, 234B क्या बोलता है कि इस साल में जो असेस्ड टैक्स आएगा, इस साल में जो असेस्ड टैक्स आएगा से 2 लाख रुपए, ओके, इसका 90% आपको यहां तक पे करना है, इसका 90% आपको यहां तक पे करना है, तो 1,80,000, राइट। मतलब असेसी 234A से बच गया, असेसी 234B से बच गया, और ये जो राह देखते गवर्नमेंट बैठी है यहाँ पे पेमेंट ही नहीं किया, बस एक ही पेमेंट कर दिया 1,80,000 ऑन 31 मार्च, ओके, एक ही पेमेंट कर दिया, और गवर्नमेंट तो राह देख के बैठी है, अभी आएगा इनकम, अभी आएगा इनकम, अभी आएगा इनकम, राइट। सो यहाँ पे 234A में भी इंटरेस्ट नहीं लगा, 234B भी फेल हो गया, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने और एक रास्ता निकाला। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला कि 234A क्या बोलता है कि अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया या लेट फाइल किया तो इंटरेस्ट। 234B क्या बोलता है कि आपने 31 मार्च तक 90% ऑफ असेस टैक्स नहीं पे किया तो इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B। अब 234C हम इंसर्ट करेंगे। 234C क्या बोलेगा, हर बार जितना आप इंस्टॉलमेंट कम पे करोगे उस पे हर बार हम आपसे इंटरेस्ट लेंगे, हर बार हम आपसे इंटरेस्ट लेंगे, ओके। फिर ये इंटरेस्ट कैसे कंप्यूट किया जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स अंडरस्टैंड दैट, ये इंटरेस्ट कैसे कंप्यूट किया जाएगा, ओके। जो इंस्टॉलमेंट आपको 15/6 में पे करना है माय डियर स्टूडेंट्स, जो इंस्टॉलमेंट, अंडरस्टैंड द लॉजिक फर्स्ट, जो इंस्टॉलमेंट आपको 15/6 में पे करना है, ओके, जैसे the installment that you have to pay on 15th of June my dear students, okay। इस पे आपको क्या पे करना है, इसका अगर आपने एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पे किया या अप्रोप्रिएट अमाउंट नहीं पे किया, अब वो कैसे निकालेंगे हम, वो कैसे निकालेंगे, शॉर्टफॉल कैसे निकालेंगे, तो ओके, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या बोलता है, घबराओ मत, हमने कितना बोला है, 15% बोला है, राइट। तो एक काम करो, ओके, आप क्या निकालो, यू फाइंड आउट कि इसका 15% कितना था, 2 लाख का 15% कितना आएगा, सो 15% ऑफ असेस्ड टैक्स निकालो, ओके। 15% ऑफ असेस्ड टैक्स निकालो कि एक्चुअली 15% कितना होना चाहिए था, इसमें से लेस करो कि आपने एक्चुअली कितना पे किया, वो लेस करो। 15% ऑफ एडवांस टैक्स एस्टिमेटेड, आपने जो पे किया, 15% ऑफ एडवांस टैक्स जो आपने पे किया, ओके, this will become your principal, okay, multiplied by 1% will be your rate, multiplied by यहाँ टाइम पीरियड इज फिक्स्ड माय डियर स्टूडेंट, 3 मंथ्स का टाइम लिमिट यहाँ पे फिक्स कर दिया है, ओके। सो 15 जून के लिए उन्होंने 3 मंथ्स का टाइम लिमिट फिक्स किया है, 15 सितंबर के लिए 3 मंथ्स का टाइम लिमिट फिक्स किया है, 15 दिसंबर के लिए 3 मंथ्स का टाइम लिमिट फिक्स किया है, और 15 मार्च के लिए, बट इट इज ओनली 1 मंथ, ओनली 1 मंथ से आपको टैक्स कंप्यूट करना है माय डियर स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट कंप्यूट करना है, सॉरी, डू यू अंडरस्टैंड, ओके, यस। अब और एक चीज, आई एम गोइंग टू गिव दिस इन राइटिंग टू यू, डू नॉट वरी। अब और एक चीज माय डियर स्टूडेंट्स, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने और एक बेनिफिट इंट्रोड्यूस किया, और वो बेनिफिट इंट्रोड्यूस क्या था माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंटरेस्टिंग है, ये 15% और ये 45%, राइट। स्टार्टिंग का ये साल बस शुरू हो रहा है, पता नहीं है आपको कि क्या होने वाला है आगे, जैसे जैसे साल खत्म होता है हमको पता चल जाता है फिर भी रूप रंग रेशा कैसा है, राइट। अभी तो साल शुरू हुआ है, आपको पता नहीं है, तो अगर आपने 12% एडवांस टैक्स पे किया तो इंटरेस्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, अगर यहाँ पे आपने 36% पे किया तो इंटरेस्ट एप्लीकेबल नहीं होगा माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपको इंटरेस्ट एप्लीकेबल नहीं होगा माय डियर स्टूडेंट्स, क्लियर एवरीवन,
क्लियर एवरीवन? 100%? ओके, तो ये चार्ट इतना सा लिख के ले लो आप लोग. ओके, यस. फिर हम लोग, मैं इसका डिटेल आपको 234A, B, C एक बार लिखवा देती हूँ. चलो एक बार ये चार्ट लिख लो. हेडलाइन देना सेक्शन 234C इंटरेस्ट. कम ऑन. यस माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज टेक दिस डाउन. ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपको लिखवाती हूँ अच्छे से. ये मैंने सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा था. यस, कम ऑन. Done, my dear students? ओके, अब मैं देती हूँ आपको एक डिटेल्ड समरी जिसमें आपको सब कुछ समझ में आएगा इन डिटेल. ओके, यस माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज फोकस. अब सेक्शन 234A क्या बोलता है? सेक्शन 234A क्या बोलता है? ओके, यस, no problem. P into R into T, my dear students. Okay, yes. So section 234A. सेक्शन 234A. तो इसमें प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टैक्स क्या आएगा? ओके, 234A क्या बोलता है कि इफ आपने ROI, रिटर्न ऑफ इनकम, माय डियर स्टूडेंट्स. ओके, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि 234A कब एप्लीकेबल होगा? कब एप्लीकेबल होगा कि रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं किया तो, या लेट रिटर्न ऑफ इनकम फाइल किया तो. ओके, तब सेक्शन 234A एप्लीकेबल हो जाएगा. व्हाट इज द प्रिंसिपल? ऑन व्हाट अमाउंट विल इट बी एप्लीकेबल, माय डियर स्टूडेंट्स? असेस्ड टैक्स लेस TDS लेस एडवांस टैक्स पेड. आपने एक्चुअली कितना पे किया है इंटू 1% पर मंथ. ओके, नंबर ऑफ मंथ्स. अब ये मंथ्स यहाँ पे कैसे निकालेंगे? ड्यू डेट फ्रॉम ड्यू डेट. ओके, फ्रॉम ड्यू डेट नहीं, नेक्स्ट डे ऑफ ड्यू डेट. बराबर है ना? अगले दिन से, क्योंकि ड्यू डेट तक आप रिटर्न फाइल कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट डे फ्रॉम ड्यू डेट टू एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम. एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम. ओके, यस. पहले समझ लो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू गिव यू टाइम टू राइट. ओके, एक बार नहीं समझा ना तो ये कॉन्सेप्ट कभी जिंदगी भर समझ में नहीं आएगी. सेक्शन 234B. सेक्शन 234B कब एप्लीकेबल है माय डियर स्टूडेंट्स? सेक्शन 234B कब एप्लीकेबल है? जब आपने पे किया हुआ एडवांस टैक्स, ओके, इज लेस देन 90% ऑफ असेस्ड टैक्स. आपका जो एसेस टैक्स है उसके 90% से कम होगा तो 234B होगा. राइट, यहां पे भी क्या होता है? इट इज असेस्ड टैक्स लेस TDS लेस एडवांस टैक्स पेड. इंटरेस्ट रेट 1%. ओके, यस. यहां पे टाइम पीरियड क्या है? फ्रॉम, यहां पे फिक्स है, इट इज 1st of April of AY to डेट ऑफ ROI, क्योंकि ROI में टैक्स पे किए बिना ROI आता है. ओके, नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट. नाउ सेक्शन 234C. सेक्शन 234C क्या बोलता है? कि इट इज एप्लीकेबल टू एडवांस टैक्स. इट इज एप्लीकेबल टू माय डियर स्टूडेंट्स एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट्स. इट इज एप्लीकेबल टू एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट्स. ओके, ठीक है. मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख लेती हूँ बिकॉज आई हैव अ बिट ऑफ लेस ऑफ स्पेस हियर. ओके, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब आता है माय डियर स्टूडेंट्स? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उनका आता है कब? ऑन 15th of June. 15th of June तक आपको कितना पे करना है? 15%. बराबर है ना? यहाँ पे लिख देती हूँ. तो इसके लिए प्रिंसिपल क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स? प्रिंसिपल विल बी 15% ऑफ असेस्ड टैक्स
लेस 15% आपने जितना एक्चुअली पे किया है एडवांस टैक्स का। ओके, इस पे कितना परसेंट पे करना है? 1%। ओके, टाइम लिमिट यहाँ पे फिक्स्ड है 3 मंथ्स। ओके, यस, यहाँ पे स्टार्टिंग डेट फिक्स है तो यहाँ पे नंबर ऑफ मंथ्स फिक्स है। क्लियर? ओके, यस। आगे अब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट मेरा कब होता है ड्यू? नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट मेरा ड्यू है 15/9 को, जब मुझे 45% पे करना है। सो व्हाट विल बी माय प्रिंसिपल? 45% ऑफ एसेस्ड टैक्स माइनस 45% ऑफ व्हाट? सॉरी, एडवांस टैक्स नहीं, एस्टिमेटेड टैक्स। आपने कितना टैक्स एस्टिमेट किया है? लेस 45% ऑफ एस्टिमेटेड टैक्स, 1%। अगेन इट इज फिक्स्ड 3 मंथ्स। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कब आता है माय डियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट इज 15th दिसंबर। ओके, यहां तक 75% पे करना है, राइट? सो व्हाट विल बी माय प्रिंसिपल? 75% ऑफ एसेस्ड टैक्स लेस 75% ऑफ एस्टिमेटेड टैक्स, 1%, फिक्स्ड 3 मंथ्स। आगे ओके, आगे मेरा लास्ट इंस्टॉलमेंट आया 15th मार्च को, वेर आई हैव टू पे 100%, राइट? सो यहाँ पे मेरा प्रिंसिपल क्या आएगा? 100% ऑफ एसेस्ड टैक्स लेस 100% ऑफ एस्टिमेटेड टैक्स। ओके, इसका 1% एंड टाइम लिमिट इज फिक्स्ड, दैट इज 1 month my dear students. टाइम लिमिट इज फिक्स्ड, दैट इज 1 month my dear students. क्लियर? अब यहां पे उन्होंने सिर्फ 2 इंस्टॉलमेंट्स के लिए बेनिफिट दिया है कि अगर आप यहां पे यस, अगर आप यहां पे माय डियर स्टूडेंट्स 15% की जगह 12% पे करते हो और 45% की जगह आप 36% पे करते हो, देन इन दिस केस, ओके, देन इन दिस केस इफ 12% और 36% पेड, then 234C will not be applicable. No interest under section 234C. Clear my dear students? 100% सिंपल है। अभी ये समरी के बाद इजी जा रहा है, yes or no? Okay, yes, come on, please quickly take this down. Please quickly take this down my dear students. And then we'll solve a practical problem.
Okay, my dear students. Okay, yes, now let's solve a practical problem. Okay, yes, let's take an example. Okay, yes, come on. Let's take an example, my dear students. Okay, say estimated tax in PY. What is the estimated tax? Say it is rupees 2,50,000. Whereas assessed tax, okay, is rupees 3,56,000 and this is paid on 19th December 21. ओके यस, और इससे एडवांस टैक्स के इंस्टॉलमेंट्स पे किए हैं. दीज इंस्टॉलमेंट्स हैव बीन पेड ऑन 15/6, 15/9, 15/12 and 15/3. Now how many, what is the amount? 37,500, 1,12,500, 1,87,500 and 2,50,000. Okay, first we are going to solve it together and then you are going to solve, my dear students. We have to find out interest under section 234A, B and 234C. ठीक है? Okay, 234A is very easy. Okay, yes, चलो. अब पहले interest under section 234B, my dear students. अब सबसे पहले हमको देखना है कि whether 234B would be applicable. और your calculators in your hands. Assessed tax 3,56,000. इसका 90% होना चाहिए 3,20,400. बट आपने सिर्फ 2,50,000 पे किया है. सो इंटरेस्ट आएगा. कितना आएगा? ओके, यस, असेस टैक्स कितना है? 3,56,000. अब तक आपने कितना पे किया है? 2,50,000. सो 1,06,000 पे आपको 1% से इंटरेस्ट पे करना है. 234B का टाइम लिमिट स्टार्ट होता है आंख बंद करके 1 अप्रैल. सो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 9 महीना. सो 1,06,000 into 1% into 9. That comes to, my dear students, it comes to 9,540. Yes or no? Yes or no? Okay. Into 1% into 9 comes to 9,540. No problem. अब आगे इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C. ठीक है, ओके. अब इसको हमको धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट वाइज लेना है. पहला इंस्टॉलमेंट 15/6. ओके, अब पहले 15/6 में 234C एप्लीकेबल होने के लिए हमको क्या चेक करना है कि उसने कम से कम 12% पे किया है कि नहीं. सो कम ऑन योर कैलकुलेटर्स. एसेस टैक्स 3,56,000, इसका 12% इंटू 0.12, मतलब हमने मिनिमम 42,720 पे करना चाहिए था. अगर हम इतना पे करते तो 234C एप्लीकेबल नहीं होता, बट हमने उससे कम पैसे भरे हैं, इससे 234C विल बी एप्लीकेबल. ठीक है, तो कितना आ जाएगा? अब कम ऑन माय डियर स्टूडेंट्स, I hope memory of your computer is clear, of your calculator is clear. Let's start. Okay, yes, assessed tax 3,56,000, इसका 15% मेमोरी प्लस बराबर है. फिर मेरा एस्टिमेटेड टैक्स 2,50,000 इंटू 15%, राइट, इंटू 15% मेमोरी माइनस. सो मेमोरी रिकॉल कम्स टू 15,900 इंटू 1% इंटू 3. मुझे कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है. आगे नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आया 15/9 को. अगर मैं 26% पे कर देती हूँ, 26% अगर मैं पे कर देती हूँ, राइट, ओके, यस. तो यहाँ पे 26 नहीं 36, यस, सली मिस्टेक. अगर मैं 36% पे कर देती हूँ तो इंटरेस्ट नहीं आता. तो चलो 3,56,000 इंटू, पहले मेमोरी क्लियर कर लो, 3,56,000 इंटू 36% आता है 1,28,160. बट मैंने उतना इंस्टॉलमेंट भरा ही नहीं, उससे कम भरा है, तो इंटरेस्ट आने वाला है. तो चलो ऑन योर कैलकुलेटर्स, मेमोरी क्लियर. 3,56,000 इंटू 45% मेमोरी प्लस, 2,50,000 इंटू 45% मेमोरी माइनस. मेमोरी रिकॉल इज 47,700. सो 47,700 से 1% फॉर 3 months. आगे 15 दिसंबर, कोई लिमिट है क्या? कोई भी नहीं है. ओके, यस, यहाँ तक आपको 75% पे करना ही है. तो चलो
Memory clear. 3,56,000 into 75%. Memory plus 2,50,000 into 75%. Memory minus memory recall comes to 79,500. 79,500 pay 1% for 3 months. No problem. अब next 15/3 को आपको पे करना है. ओके 15/3 में आपको कितना पे करना था 3,56,000 पर 2,50,000 पे किया है. सो 3,56,000 minus 2,50,000 comes to 1,06,000 my dear students. Okay 1,06,000 1% for 1 month. So that comes to how much? Come on, let's calculate. I hope the memory is clear. 15,900 into 1% into 3 memory plus. This comes to 477. आगे 47,700 into 1% into 3. That comes to 1,431 memory plus. 79,500 into 1% into 3 memory plus 2,385. Okay, next 1,06,000 into 1% into 1 month 1,060 memory plus. So memory recall answer comes to 5,353. Clear my dear students? Now tell me, is it difficult? Now tell me, is it difficult my dear students? Yes? Come on, quickly take down this question and I want you to solve this question for homework my dear students once again so that चाहे कैसा भी question क्यों ना आ जाए आपको exam में, you will never make mistakes my dear students. Come on, quickly take down this question. Okay? Yes. So here our advanced tax and interest on advanced tax chapter comes to an end my dear students.